Hello everybody, welcome to the online session of Manu Law Classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law Classes. देखो जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. Question is, can you learn English just by reading it or listening to it? There are so many students who come to me and they say, sir, I read a lot but my English is not improving. What's the reason? And in today's video we will be discussing all the things that you need to do. Not only reading, listening, but there are some more elements which are necessary if you really want to learn good English and be good at English, be it for competitive English, language, or subjective. All you need some practice with strategy. All right, so in today's session we are going to talk about whether with all the elements, if one is missing, can you do it? No. The answer is clearly no. So can you learn English just by reading it or listening to it? The answer is no. How I am so confident about saying it no? There are so many students who think कि sir मैं तो बहुत अच्छा reader हूँ. I read anything, I understand everything, but I'm not able to speak. So the question is, ये जो आपके सामने question है, that is partially yes to. Depend करता है कि what you want to pursue in life. If you simply want to become a person जिसे इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट पता होने चाहिए, he should only read and understand, जिसे कुछ करना नहीं है, you do not have to convey that message to anybody or you do not have to talk about it, you are just reading it for your knowledge, then reading will help you. बिकॉज रीडिंग करते करते क्या हो जाएगा, विद द पासेस ऑफ टाइम आपके अंदर इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी आ जाएगी दैट यू रीड एनीथिंग, यू अंडरस्टैंड इट, है ना. बिकॉज इफ यू आर रीडिंग समथिंग, लेट्स से यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, तो आप या तो उसे उसी समय छोड़ दोगे, ईदर यू विल इनकलकेट दैट इंटरेस्ट गूगलिंग इट, सर्चिंग इट ऑन डिक्शनरी, इन अ डिक्शनरी, एंड उसके बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा. तो या तो आप क्विट करोगे या तो आप आगे बढ़ोगे. इन केस आप आगे बढ़ रहे हो, सो यू विल हैव a lot of vocabulary that will lead you to understand any extract that you read, but it doesn't guarantee that you are going to be a good speaker or a good narrator or a good lawyer in your case, because you are a law aspirant and you are here because you want to pursue law. आप मनु लॉ क्लासेस की वीडियो इसलिए देखते हो क्योंकि आप लॉ करना चाहते हैं. तो दिस क्वेश्चन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो कुछ लोग ऐसे जिन्हें इंग्लिश में केवल पढ़ना ही आना चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए नो. बट सम पीपल, उनके लिए येस आई वुड से. बट सम पीपल हु वांट टू बिकम अ लॉयर और अ जज और अ पब्लिक स्पीकर और अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एनीथिंग रिलेटेड टू स्पेसिफिकली लॉ. देखो, लॉ मीन्स रीडिंग एंड स्पीकिंग. सो इन दिस क्वेश्चन द मिसिंग पार्ट इज स्पीकिंग as well as writing. So let us understand what are some 4 elements that you require when you want to become very good at law, very good at English, very good at oratory. तो oratory क्या होती है? Oratory means public speaker. So इसका थोड़े ना मतलब होता है कि that you go to a stage जहाँ पे ढेर सारे लोग आपके सामने बैठे हो and then you are orator. No, when you are in a courtroom where people are sitting, where honorable judge is sitting, so you are orator there. Orator means a person who can speak before people. All right, they can be anywhere. It can be on YouTube too. Let's say I'm making a video. I know that a lot of people watch this video. All right, so I'm an orator here. So if you literally want to become a good speaker, you have to have command over listening, reading, writing and speaking, all these sections. मेरा क्या मानना है, बनो तो अपने फील्ड के मास्टर बनो, अदरवाइज मत करो, है ना. And in case you are going to become a lawyer, so what kind of lawyer you want to become, right? So a lawyer have a lot of cases. On the other hand, the other lawyer have just some cases in hand. So what is the difference? He does not read, he does not educate himself the need that he has. All right, so अब हम बारी बारी से बात करेंगे that how listening and what listening, reading क्या, writing क्या, speaking कैसे. All right, so these areas have to be covered if you literally want to speak English, want to be good at English, want to have good English knowledge. So this video is common and it's for all the people out there, but specifically those who want to go for law entrance examination. All right, so first we will talk about listening section. So as I have told you in my previous video also, listening means shruti.
श्रुति मीन्स सुनना। जब कोई चीज़ आप सुनते हो वो आपके जहन में जाती है एंड दैट मेक्स सेंटेंस एंड देन यू यूज इट इन योर वे। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार जाएगा वो आपको लर्न हो जाएगा। सो इसलिए लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स whenever you want to learn a language or second language. So here in this case you are trying to learn English, so audiobook, listening to audiobooks will be helpful. What I would recommend कि आप क्या करना, let's say there is a book called The Alchemist, तो आप पहले क्या करो, उस बुक को हिंदी में पढ़ लो। देखो, अगर कोई चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा सीखना चाहते हो उसके लिए जिस हद तक जाना चाहिए जाओ। Since you are watching this video means you are at basic level of or elementary level of English, so that is why you are watching me. So आप एक बुक लो, कोई सा भी बुक, be it any novel, anything, आप उसे पहले पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, and then start listening to the audiobook. Audiobook will help you correct your pronunciation, the implication of words, कैसे एक word को implement किया जाता है, कैसे एक word function करता है, all those things you will learn, and revision will be there. पॉडकास्ट, ऑडियो बुक सेम। टेड टॉक्स के बारे में आप जानते ही होंगे, देयर आर वीडियोस ऑफ 18 मिनट, बेसिकली 18 मिनट्स। तो उसमें क्या होते हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक पीपल हु हैव डन सम गुड वर्क इन अ फील्ड, इन एनी फील्ड, दे हैव डन सम ट्रिमेंडस जॉब, दे हैव प्रेजेंटेड देयरसेल्फ, दैट्स व्हाई दे आर इन टेड टॉक्स। सो वॉचिंग टू टेड टॉक्स विल हेल्प यू बिकॉज दे प्रिपेयर देयर स्पीच। वो अपने स्पीच को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, दे फिल इट विद गुड वोकैबुलरी। ऑलराइट, तो लेट्स से यू आर वाचिंग अ टेड टॉक, यू आर नोटिंग डाउन द वर्ड्स दैट अ स्पीकर यूजेस। अगर कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रिडंडेंट है, दैट इज़ नॉट इवन इन यूज़। वो अपनी लिटरली कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए, अपने एजुकेशन को दिखाने के लिए लोग बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप उतने अच्छे वर्ड्स यूज़ करो। यू कैन हैव सम पावरफुल वर्ड एंड बिल्ड योर स्पीकिंग। तो आपने क्या करा, you just watched a video, be it TED Talk, be it any presentation out there in YouTube, noted down some word and ask yourself कि ये words मुझे सीखना है पहले तो, और उसके बाद मुझे ये utilize करना है in speaking. Songs with lyrics, देखो lyrics क्यों, because English songs हैं, पहली बात तो वो intonation बहुत ही ज़्यादा होता है उसमें, so sometimes a simple word when it goes into poet और पोएट्री तो वो थोड़ा दूसरे टर्म में प्रेजेंट करते हैं। सो इसलिए लिसनिंग सॉन्ग विथ लिरिक्स विल हेल्प यू बूस्ट दैट कॉन्फिडेंस, वेयर इन यू विल बी एबल टू यूज द वर्ड इन अ वे इट शुड बी यूज्ड विद अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो दीज लिसनिंग डिवाइसेस will be helping you if you want to start your preparation. So start with this. All right, reading. Second, reading. Vocabulary. देखो, vocabulary means whenever you are reading something, you read it well, you noted it down somewhere, and then you again start reading them every day. Because जब तक कोई चीज़ बार बार नहीं करोगे, you will not be very very confident about it. जैसे जब आप कोई भी काम पहली बार करते हो यू आर हेजिटेंट, बट अगर आप किसी काम को फ्रिक्वेंटली करते हो, लेट्स से ड्राइविंग, so when somebody learns driving he is extra careful and he is very very cautious about anything that comes up. But as soon as you become a pro in driving, you are confident, you know that what is my speed, at what speed should I take brake and all those things. All right, so it's all about practice. So vocabulary पहली बार में confidence होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, बट डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे एज सुन एज यू प्रोसीड विद दिस वर्ड्स लर्निंग, यू लर्न इट वेल बाय हार्ट. फिक्शन एंड नॉन फिक्शन नॉवेल्स, देखो इस बारे में आई हैव इनिशियली स्टेटेड दिस थिंग. व्हाई? बिकॉज सबसे पहले अगर कोई चीज़ आती है तो वो है इंटरेस्ट. तो अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेट्स से यू स्विच डायरेक्टली टू न्यूज़पेपर, यू वेंट एंड अनफॉर्चुनेटली यू वेंट टू एडिटोरियल सेक्शन. आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कुछ समझ आएगा नहीं, बिकॉज यू आर एट बेसिक लेवल. दूसरा कि जैसे ही आपने इंटरेस्ट लूज किया फिर आपको दुनिया का कोई चीज़ सिखा नहीं सकता. जब तक किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है किसी काम को करने का, ही विल नॉट बी एबल टू डू इट. ठीक है, सो इसलिए फिक्शन मतलब ऐसी कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ पढ़ो. नॉन फिक्शन, इट मे बी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ऑफ समबडी और सम स्टोरीज दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट, है ना. तो ये सच पे आधारित होती है, झूठ पे आधारित होती है बेसिकली. तो इस तरह की स्टोरीज जो होती है वो चीज़ों को जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करती है पढ़ने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ बुक इंग्लिश में, अगर आपको समझ में आने लगा
you will be craving for it. Let's say you have gone to job, you have gone somewhere, वो आपके मन में चलता रहेगा that what is the next thing would have happened. So as soon as you reach home, you grab that book and you start reading it. So वो नशा अपने अंदर पैदा करना है if you want to become good speaker or good at English. Comics. Comics is one of the best things that should be given to at the very small stage of even child को ही दे देना चाहिए, क्योंकि कॉमिक्स में पिक्टोरियल होते हैं. when you read something with picture, it is drilled in your mind. आप उस शब्द को, उसके एक्सप्रेशन को, वो सब याद कर लेते हो, है ना. जैसे मार्वल की मूवी देखने में कितना अच्छा लगता है, उसी तरह से कॉमिक्स जब आप पढ़ोगे आप बहुत कुछ सीखोगे, बिकॉज यू डेवलप इंटरेस्ट. सो कुछ भी सीखने से पहले अपने अंदर एक इंटरेस्ट, रुचि डेवलप करें, तब आप किसी चीज़ को सीखें. उसके बाद आता है आपका न्यूज़पेपर. सिंस यू आर बिकमिंग अ लॉयर, यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड लॉयर, अ प्रॉस्पेक्टिव लॉयर, है ना. तो आपको न्यूज़ में क्या चल रहा है रेगुलरली ये आपको पता होना चाहिए. सो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, बट स्टार्ट विथ सिंपल न्यूज़. सिंपल न्यूज़ मीन let's say city news, what's going on in city. Do not jump directly to editorial section, but read simple news like a boy got a scholarship, a man was hit by truck. तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो आपको पहले पढ़ना चाहिए, उससे आपको चीज़ें डेवलप होगी. ध्यान रखना, इंटरेस्ट आएगा तभी आप अच्छे बनोगे. इंटरेस्ट खोना नहीं है किसी भी रूप में. अगर इंटरेस्ट खो रहा है आप उस चीज़ को छोड़ दो, कुछ दूसरा करो. लेट्स से यू आर रीडिंग एडिटोरियल, आप नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो. स्विच टू समथिंग विच इज़ easy, which you feel confident about, which you like, उसे करो. Day by day you will be developing this habit. Alright, next, various legal forum. This is for those people who want to come in law field. अब हर फील्ड की अपनी अपनी टेक्निकलिटीज होती है. एवरी फील्ड हैज़ इट्स टेक्निकलिटी. सो साइंस का स्टूडेंट साइंस के टर्म से फेमिलियर होता है. उसी तरह इफ़ यू वांट टू कम इनटू लॉ फील्ड तो आपको लीगल टर्म से फैमिलियर होना पड़ेगा. एंड द बेस्ट सोर्स to read legal words and what is going on in legal field is some legal fora. Some of them is live law, bar bench, and there are so many. Alright, so this was all about reading. So we just discussed about listening and then reading. Moving on to the next slide, that is based upon writing. अब आप कहोगे सर राइटिंग किस तरह से मददगार है हमारे स्पीकिंग में या हमारी इंग्लिश अच्छी हो. हमेशा ध्यान रखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो और क्यों सीखना चाहते हो. नीडलेस टू टेल यू, इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. एक रेस्टोरेंट में जो वर्कर होते हैं ना, वो भी जब आप जाओगे आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, है ना. सो जो सोसाइटी परिवर्तन हो रही है, आपको उस परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को बदलते रहना होगा. तो राइटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्रामर के एक्सरसाइजेस से शुरू करो. ठीक है, आप कुछ बुक्स में हैं जो रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, जैसे एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मर्फी. उसमें द बुक इज़ वेरी गुड बिकॉज इट हैज़ सम पिक्चर्स in the left page, and at every right page you will find the exercise of the same chapter that have been taught to you. इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी. राइटिंग का ये मतलब नहीं कि कुछ भी उठा के लिखना शुरू कर दिया. व्हेन यू राइट समथिंग यू राइट इट ग्रामेटिकली करेक्ट. तो स्टार्ट इट विद ग्रामर एक्सरसाइजेस जिसमें आपको प्रॉपर यूजेस पता होगा किसके साथ इज, एम, आर, वॉज वर्ड, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, विल नॉट हैव बीन और वोंट हैव बीन, कब कहाँ कैसे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. यू लर्न दैट थिंग. सो ऑलराइट, सो ग्रामर एक्सरसाइजेस शुड बी योर फर्स्ट स्टेज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग. नेक्स्ट, अगर आप देखो आज के जनरेशन में उन्हें डायरी राइटिंग नहीं सिखाई जाती है. प्रीवियसली इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट समथिंग, मेक श्योर यू स्टार्ट राइटिंग डायरी. अब आप कहोगे सर डायरी में क्या लिखें. डायरी में लिखो आपने सुबह से शाम तक क्या किया. ऑब्वियसली आपको टेंसेस की जरूरत पड़ेगी. उसमें आप पास्ट टेंस में लिखो, आई गॉट अप एट दिस टाइम, आई वर्शिप्ड टू गॉड, आई गॉट रेडी फॉर ऑफिस, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई वेंट टू ऑफिस, आई वर्क देयर ऑल डे लॉन्ग. आफ्टर दैट आई केम माई होम, I came to my home and then I went to park, exercised a bit, then again I came and sat for study. In that way you're practicing basic tenses, है ना. past tense practice कर रहे हो and past tense should be practiced, क्योंकि देखो future कोई देखा नहीं है, past ही सब है जो बात करते हैं. प्रेजेंट में कोई बात नहीं करता. आपने क्या पहना है, क्या चल रहा है, सब जानते हैं आपके बारे में. ऑलराइट, सो डायरी राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ समराइज स्टोरी. लेट्स से यू रेड सम स्टोरी, स्टार्ट राइटिंग इट.
स्टार्ट राइटिंग इट एंड गेट इट इवेलुएटेड बाय सम टीचर, मेंटर, जो आपके ग्रामर एरर को बता सकेंगे। क्योंकि देखो, जब चीज़ें सही सही चलता रहता है आप कुछ नहीं सीखते हो, बट जब आप गलतियाँ करते हो ना, फिर आपको कोई पॉइंट आउट कर दे क्योंकि दिस वॉज द पार्ट यू मेड मिस्टेक, नाउ दैट हिट्स यू, वो आपको याद आएगा, ओ आई शुड नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन। ऑलराइट, सो समराइजिंग स्टोरी विल हेल्प यू। उसके बाद देखो, सिंस यू आर कमिंग इनटू लॉ फील्ड, सो ऑफिशियल मेल्स एंड लेटर एप्लीकेशंस, ये सब रेगुलर एक्टिविटीज़ है, ये ग्रामर बुक के लिए नहीं बनाई गई है या आपके 8th क्लास में पढ़ने के लिए नहीं थी कि ऑफिस में लेटर कैसे लिखते हैं वो सब। यू मस्ट बी गुड एट राइटिंग ऑफिशियल मेल्स इफ़ यू आर कमिंग इनटू अ लॉ। आपको किसी को लीगल नोटिस भेजना हो ईमेल पे कैसे भेजेंगे, यू मस्ट नो दैट, राइट। तो अभी से उसकी आदत डाल लो कि आप ऑफिशियल मेल कैसे लिखते हो, उसमें क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, कैसे ग्रामर यूज होते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स क्या यूज होते हैं, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। जस्ट गूगल ऑफिशियल मेल एंड देन गो टू ईमेल सेक्शन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स देयर एंड प्रैक्टिस अ लॉट। ऑलराइट, सीखने वालों के लिए ना पूरी दुनिया सिखाने को तैयार है, ओनली यू शुड हैव दैट डिजायर टू लर्न, राइट। सो राइटिंग, ये सब चीज़ें आप राइटिंग करना शुरू कर सकते हो। Moving on to the next slide, that is speaking. This is the most important thing, जो as a lawyer you cannot afford if you're not good at it. अगर आप speaking में अच्छे नहीं हो तो आपको मुश्किलें आएंगी, like the way the place you should have been promoted, आपको वहाँ पे promotion रुक जाएगा। Even though you will have job, you will not get promoted and you will feel bad about it. So I don't want you to feel bad about yourself just because of a language. Language can be easily learned. तो अब देखो क्या करो स्पीकिंग। अब आप कहोगे सर मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है जो मुझे इंग्लिश सिखा सके। सिंपली आप अपने डेली रूटीन को अपने आप से बातें करके बताओ। लेट्स से माय नेम इज ब्रिजेश, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट माय डेली रूटीन, व्हाट आई डिड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, और आई कैन ऑल्सो टॉक टू माई सेल्फ अबाउट व्हाट आर माई प्लान्स फॉर टुमारो एंड व्हाट इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। Alright, so start with the past tense, the way I said. You can talk about in future also, Brijesh, tomorrow the plan is you will go to park in the morning, you will jog, then you will come. So in that way you talk to yourself. है ना, it's all about interest. अगर आप interest पैदा कर ले इस तरह का कि मुझे सीखना ही सीखना है, within months I'm telling you 3 to 4 months are sufficient to learn a language. Alright, next, this is very very important. बाइलिंगुअल कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स। देखो, कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स तो आपको सब सिखाते हैं, बट बाइलिंगुअल क्यों होता क्या है, व्हेन समवन हु कम्स फ्रॉम अ स्कूल और बैकग्राउंड वेयर इंग्लिश वाज नॉट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर फर्स्टली वेरी वेरी हेजिटेटेड व्हेन दे स्पीक। अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। लेट्स से यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इंग्लिश बट यू हैव लर्नड टू स्पीक सम सेंटेंसेस। क्या करो, सिंपली अपने हिंदी बोलने के दौरान, बाइलिंगुअल मीन्स दो भाषाएं, हिंदी बोलने के दौरान इंग्लिश सेंटेंसेस बोल दो, इंग्लिश वर्ड्स बोल दो। 2 लाइन हिंदी, 2 लाइन इंग्लिश, 2 लाइन हिंदी, 2 लाइन इंग्लिश, उसके बाद 3 लाइन इंग्लिश, देन 2 लाइन हिंदी, एंड दैट इन दैट वे एक समय आएगा जब आप पैराग्राफ इंग्लिश में बोल के फिर हिंदी बोलो। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें आता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि उनके जो फैन फॉलोइंग है वो हिंदी भी होते हैं ज़्यादा, सो दे वुड नॉट लिसन टू देम इफ़ दे स्पीक कंटिन्यूसली इन इंग्लिश। सो आई होप कि ये पॉइंट आपकी मदद करेगा व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग समथिंग। सो बाइलिंगुअली आप कन्वर्सेशन करो किसी भी फ्रेंड से, हे मैन हाउ आर यू, इतना ही बोल पाना एक बड़ी बात है किसी पर्सन के लिए हु इज जस्ट लर्निंग इंग्लिश। ट्रस्ट में, जब आप ये ऐसा करोगे आपके साथ ऐसा कंडीशन आएगा। सो ही सेज दैट आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, सो यू वुड से आई एम फाइन, थैंक यू। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद दिस थिंग, फिर और बताओ क्या चल रहा है। सो आई एम प्लानिंग टू डू MBA, मैं MBA करना चाहता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, आई जस्ट स्टेटेड अ सेंटेंस इन इंग्लिश देन हिंदी। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा धीरे धीरे। Dare to speak in class or before people। देखो, जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो ना, अब मान लो आप स्विमिंग सीख रहे हो, आपने खूब किताबें पढ़ी बट यू डिड नॉट गो टू स्विमिंग पूल, यू डिड नॉट प्रैक्टिस स्विमिंग, कभी नहीं सीख पाओगे। सो द सेम हैपेंस हियर। आपने बैकग्राउंड में बहुत प्रैक्टिस करा, मन में बहुत प्रैक्टिस करा, बट बोलना तो है आज नहीं कल। तो क्या करना है उस जगह पे, डेयर टू स्पीक इन क्लास। लेट्स से you have been given some opportunity, come to the stage and speak about this topic for a moment. Start speaking. गलत सही 50% गलत बोलो, but speak, because next time when you are gonna go at a stage, you will be speaking 70% correctly. All right. So I would give you this confidence that start
speaking in classroom or speak before people. Let's say you are you have qualified your +2 and now you want to go in graduation or you want to come in law field, so you have to be very good speaker. You have to go in mood court, you speak in mood court. Alright, so speak before people अभी से ही, ताकि जब वो सिचुएशन आए तो वहाँ डर ना लगे. सब कुछ प्रैक्टिस से आता है. क्रैक जोक इन इंग्लिश. देखो ये भी बहुत फनी पार्ट है. तो कभी कभी हिंदी बोलते समय आप इंग्लिश में जोक मार दो. आप कहोगे सर कैसे रिलेवेंट है ये स्पीकिंग का जोक से. सी व्हेनेवर यू आर क्रैकिंग अ जोक, तो आपका ध्यान जो है ना वो जोक पे ज़्यादा होता है ना कि कॉन्शियस अबाउट कि ग्रामर मिस्टेक हो गया. तो इसलिए मेक इट ह्यूमरस, थोड़ा सा फनी बनाओ एंड स्टार्ट लर्निंग सम जोक्स एंड गो टू योर फ्रेंड एंड उसे बताओ. क्योंकि देखो फालतू की बकवास कोई नहीं सुनना चाहता. बट लेट्स से यू आर गोइंग टू टेल हिम, हे बडी लेट मी टेल यू अ जोक. ही विल बी लाइक यस टेल मी, बिकॉज he is somewhere but he is going to entertain, get in some entertainment. So you just tell him a joke that there was a boy, he went to swimming pool and all blah 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 happened. So he will be laughing, you will be laughing and you will gain this confidence. एक बार कर लिया ना, next time अच्छे से कर लेंगे. ठीक है. So the next one is the last point that we discuss is speaking. Alright, so let me recall all the points for you. First one was listening, one of the important sections. Second, reading, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मैंने सब बता दिया. एक बार फिर से वीडियो देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए ज़्यादा. राइटिंग, क्यों लिखना है, क्योंकि आपने लिखना चुना है. यू आर गोइंग टू कम इनटू लॉ फील्ड और वेरेवर यू वांट टू गो, यू हैव टू राइट, राइट. तो लास्ट वन इज स्पीकिंग, क्योंकि प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ऑल टुगेदर आई वुड से एक मैं कहावत के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा. बहुत ही प्यारा कहावत है. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए. कभी कभी इसका क्या मतलब है पहले मैं बता दूं कि हे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है. आप मन को मनुष्य भी कह सकते हैं कि हे मनुष्य, सब कुछ धीरे धीरे होता है. जैसे कि एक माली 100 घड़ा पानी डालता है तब एक पौधा निकल के आता है ना. तो कभी भी आप कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करो, हैव दैट पेशेंस इन योर माइंड कि मुझे टाइम लगेगा और मैं इसके लिए जो करना होगा मैं करूँगा. Alright, with this motivation, I would like to end this video. Follow us on all these platforms for regular updates on law, for complimentary passages, for informative videos and regular updates. Thank you so much for watching this video till the end. Thank you.